हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल मैं हूं आरजे आमिर आपके साथ एंड टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर उज़मा कमर who is a versatile professional bridging therapy education and counseling. Currently she is with Narayana Group of Schools, Asia's one of Asia's largest chain of educational institutions, and she's working as an AGM there. उनका काफ़ी खासा एक्सपीरियंस है, तकरीबन 18 साल से वो डिसेबिलिटी केयर, वुमेन एम्पावरमेंट और मेंटल वेलबींग के लिए काम कर रही हैं. And she's so sweet that she was traveling, but she still took out time for us, and she's rather sitting in a public place right now and doing this interview. Thank you so much, Uzma, for being with us. Welcome My pleasure. to the My show. pleasure. Thank you so much. Thank you so much. It's Welcome. my pleasure to be with you. And thank you that you were traveling, but still you took out time to, chat up with us on Nurture Life Talks. Yeah, thank you so much. अच्छा उस्मा, आपका बैकग्राउंड लेकिन बहुत ही डाइवर्स है, नहीं? यू फिजियोथेरेपिस्ट, देन डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, काउंसलर. सो हाउ डज दिस ऑल सम अप, मतलब इन द वर्क दैट यू डू? Yeah, actually, earlier it was little bit confusing for me because जैसे for every girl, for every Indian girl or every Indian, you can say teenager, it is like पापा चाहते हैं कि आप एजुकेशन लाइन में जाएं, मम्मा चाहती हैं कि आप मेडिकल लाइन में जाएं, तो everything is confusing. But what happened कि I have started my career from AMU Aligarh as a physiotherapy student, and from there I have developed an interest in psychology. Psychology was my favorite subject at that time. We have to, being a physiotherapist, we have to learn child psychology, and from there I have developed an interest in childhood disability also. And for that, I have chosen Delhi University, and I have go through a course called developmental therapy. I have done PG diploma in developmental therapy from Delhi University. So this is because I have developed the interest in child psychology. So the things will come on the way. आती गई चीजें और मैं करती गई. जब मैंने इंटर्नशिप की, अपनी साइकोलॉजी की इंटर्नशिप की, तब मुझे लगा कि स्कूल लाइफ इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट एंड you can do many things in school for school children. So then I have started in the career of in the field of education. वहां से मेरा career education में शुरू हुआ, and it was DPS, fortunately, Delhi Public School. तो आपका कई बार जब होता है ना कि आप जब प्लान करते हैं तो चीजें रास्ते में आती जाती हैं, और जब आती जाती हैं तो आप उनको ग्रैब करते हैं, एंड देन फाइनली फॉर a child, education and mental health both are very important. And साइकोलॉजी ने जो किया वो एजुकेशन और हेल्थ के बीच में एक ब्रिज का काम किया, एंड द जर्नी हैज स्टार्टेड. ग्रेट. सो अच्छा, एक चीज से दूसरी चीज होती गई, दूसरी चीज से तीसरी चीज होती गई. सो ओरिजिनली आपका क्या प्लान था? I mean, जब आप बहुत छोटी थी, मान लीजिए when you were like still studying 8th 9th 10th, तब आप क्या सोचती थी? Then you thought that you will get into all this? सर एक्चुअली वो मेरा प्लान नहीं था, वो मेरी मदर का प्लान था कि मुझे फीड कर दिया गया था, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर like a normal middle class family. Yeah, so for that I have get admission in medical college, JN Medical College, AMU Aligarh, and I started my career as a physiotherapist. So to be means at that time, yeah. लेकिन ठीक है, I mean, उसके बावजूद you've done pretty well actually in a way. अभी तक कि आप 1000 से ज्यादा गवर्नमेंट टीचर्स को ट्रेन कर चुकी हैं यूपी के. सो जब टीचर्स को ट्रेन करते हैं तो उसमें क्या, हाउ डू यू ट्रेन देम ऑन डिसेबिलिटी केयर बेसिकली, राइट? या बिकॉज सर जब RTE आया, राइट टू एजुकेशन, और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होने लगी, तो हर स्कूल के लिए CBSE के नॉर्म्स, गवर्नमेंट के नॉर्म्स, ये सारे आ गए कि आपको हर बच्चे को एडमिशन देना है, आइदर अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, और हैविंग any sort of problem if the child is having
the capability, like age appropriate capability, तो he or she has to be admitted in the school. तो टीचर्स जो नॉर्मल टीचर्स थे जिन्होंने नॉर्मल बीएड किया था उनके लिए एक चैलेंज था कि उनको कैसे टैकल करना है उन बच्चों के साथ, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनके लेसन प्लानिंग करना है, कब उनको थेरेपी चाहिए, कब उन्हें काउंसलिंग चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है वन टीचर वन कॉल, वो मेरे कांटेक्ट में आए और उसके बाद उनके साथ दे आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स फॉर डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, बट द मेन प्रॉब्लम इज देयर इज नो परफेक्ट प्लान। तो टीचर्स आर लाइक वेरी मच कंफ्यूज, टीचर बहुत कंफ्यूज है कि क्या करना है, कैसे करना है। तब मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक प्लानिंग की और फिर हमने टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो इस तरह से लगभग 1800 टीचर्स हमसे कनेक्ट हुए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सो एंड उसके बाद उनको वो अच्छा लगा, उसमें उनको फ्रूटफुल लगा, तो हमने उसको 2 एपिसोड्स उसके कंटिन्यू किए जिसमें ऑल ओवर यूपी, इवन एनसीआर के भी पेरेंट्स एंड टीचर्स हमसे जुड़े। Wonderful. And that moment is appreciated by Prime Minister Narendra Modi also. That moment, one teacher, one call, that is appreciated. Yes. So you have also created an NGO, Human Chain. Yes, yes. And वो basically women empowerment के लिए काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है। So ये दोनों causes कैसे आप कनेक्ट करते हो? मतलब हाँ ठीक है, दोनों ऑब्वियसली एक तरह से कनेक्टेड भी हैं, लेकिन फिर भी आप कैसे अपने एनजीओ में इनको कैसे कनेक्ट करते हैं? Sir, actually, being a woman, I want to do something for means you can say females, but disability is my professional field also. तो एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर करके कि मुझे लगा कि आई कैन डू, बिकॉज लोग बहुत कम हैं जो अभी करियर की तरह डिसेबिलिटी फील्ड को चूज करते हैं। आप ये कह सकते हैं स्कोप नहीं दिखता, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो भी बहुत चार्म नहीं है डिसेबिलिटी का। आपकी फैमिली में कोई बच्चा है या कोई बंदा है, देन आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये फील्ड चूज करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन ये रहता है कि जी, और मैं क्योंकि खुद एक फीमेल हूँ और मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी थी कि बहुत सारे एनजीओ फीमेल्स के लिए, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन नोबडी इज वर्किंग ऑन द रूट कॉज। सो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आई वाज लाइक थिंकिंग कि हम क्यों ना, अगर हमें वीमेन एम्पावरमेंट करना ही है तो जो एक रूट कॉज है, हमारे मेल्स के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो एक प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें मेल से लड़ने के लिए अपनी वीमेन्स को तैयार करना पड़ता है कि आप ताइक्वांडो सीखिए, बॉक्सिंग सीखिए, व्हाई? तो व्हाट इज द रीजन? तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आई वाज थिंकिंग लाइक दैट। मुझे कभी भी वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, एक लड़की को एम्पावर करने के लिए उसको पुलिस बनाने की और आपको उसको मार्शल आर्ट सिखाने की जरूरत नहीं लगी। मुझे लगा एक बॉन्डिंग, व्हाई फीमेल्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। So I have started counseling with youngsters, with teenagers, and we have done a lot of things. Counseling sessions किए हमने, Google form निकाले, उनको realize कराया why female are important for them, and that was the starting of Human Chain. हमें बहुत अच्छा response मिला, support मिला। फिर we have done a lot on the health sector, menstrual health पे काम किया और अवेयर किया, एजुकेशन पे काम किया, करियर ऑप्शन दिए फीमेल्स को। तो बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ते गए और लिटरली एक वो बड़ी ह्यूमन चेन डेवलप हुई। अब हम दिल्ली में भी हैं, हम यूपी के भी अलग अलग शहरों में हैं, तो इट इज लिटरली अ ह्यूमन चेन नाउ। वंडरफुल। सो लेकिन एक खास चीज है कि एक तरफ तो विमेन एम्पावरमेंट हुआ, लेकिन लड़कियां या औरतें जो साथ में डिसेबल्ड भी हैं, that really creates a bigger problem in a way. Yeah, exactly. Yeah, and being a female, the main problem with these girls are exploitation, harassment, जिसको कई बार वो बता नहीं सकते हैं। Second, very common, very natural phenomena, menstrual health, जिसके लिए मेरी कुछ गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे बताया कि मदर्स आती हैं और वो कहती हैं कि जैसे वो टीन एज में आती हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो वो आती हैं और वो ये कहती हैं रिमूव द यूट्रस।
because how can she manage? तो दैट इज अ वेरी पैनिक थिंग कि आप एक फीमेल को उसका यूट्रस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रख सकती, क्योंकि वो इस बेसिस पे भी एक्सप्लॉइट हो सकती है, बिकॉज वो अपनी प्रॉब्लम नहीं कह सकती। तो मदर्स का टेंशन ये भी रहता है कि सम मिस हैपनिंग विल हैपन, कुछ गलत हो जाता है इनके साथ एंड प्रेगनेंसी हो जाती है अब नॉर्मल या कुछ ऐसा होता है, देन हु विल हैंडल? सो दैट इज अ बिग इशू, बिग यू कैन से बहुत एक खतरनाक चीज सामने आई कि वो आते हैं और इंटेंशनली सिर्फ इसलिए ऑपरेट कर दीजिए, यूट्रस निकाल दीजिए कि इसको आगे प्रॉब्लम आएगी। तो इस पे भी हमने, मेरी जो गायनिकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलकर हमने सोशल अवेयरनेस किया, लोगों को बताया कि एक पर्सनल लाइफ भी होती है, क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यूट्रस निकालना इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। We have to make the society aware, we should be aware about all these things। तो इस पे भी हमने काम किया। And you run another program, online program called हमें उड़ने दो। जी सर। वो क्या है सर बेसिकली? हमें उड़ने दो बेसिकली उन पेरेंट्स के लिए था जो पेरेंट्स भटकते हैं, जो पेरेंट्स को सही रास्ता नहीं मिलता, जो पेरेंट्स को एक तरह से अगेन आई कैन से कि मेडिकली एंड सोशली उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है कि आप वो झाड़ फूक कराने चले जाइए, आप ये इंजेक्शन लगा लीजिए, आप ये दवाई खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, जबकि डॉक्टर्स नोज, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो ट्रेंड, वो ये जानते हैं कि कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज हैं जिनका अभी कोई भी ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज नो रेमेडी, अभी उसका कोई इलाज नहीं है, बट स्टिल वो एक्सपेरिमेंट सा करते रहते हैं। कई बार उनको मिसडायरेक्ट किया जाता है, उनको कहीं होम्योपैथ में भेजा जाता है, कहीं सर्जरीज करा दी जाती हैं, कुछ हमारे ओझा और ये जो झाड़ फूंक वाले वो भी बैठे होते हैं, तो दे आर बेसिकली मिसडायरेक्टेड। तो हमें उड़ने दो कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स और मदर्स के लिए ग्रुप था, पेरेंट्स के लिए ग्रुप है, जिसमें हम दोनों को इंटरकनेक्ट करते हैं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने स्पेशलिस्ट से राय लीजिए, और एटलीस्ट अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो हम बच्चे के साथ कुछ बुरा भी नहीं होने दें, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ कुछ मिसहैंडलिंग ना होने दें उनकी प्रॉब्लम्स की। तो दैट इज द मेन मोटो ऑफ हमें उड़ने दो। ओके, सो बेसिकली वो एक गाइड की तरह काम करता है। Yeah, exactly. A connection link, a connected link between the experts and the needy. तो कुछ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज रही हैं आपकी जो आपने इम्प्लीमेंट करी हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं बच्चों को और अडल्ट्स को लेकर, जो खासतौर से जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे और अडल्ट्स हैं, तो उनके साथ कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको लगता है काम करती हैं? क्या काम करता है? सर अगर सोशली देखें तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस है ना। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, पेरेंट्स फैमिली एक्सेप्ट करती है, देन सोशली अगर इन लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है तो दे हैव कैपेबिलिटीज। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि उनके साथ कुछ डिफिकल्टी थी, सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज वर देयर, बट दे आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। तो सबसे पहले तो हम जितनी जल्दी हो सके उसको एक्सेप्ट करें, उसके बारे में नॉलेज लें, एंड नॉलेज लेने के बाद मुझे लगता है कि एक जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं उस पर काम करें। तो अगेन एटीट्यूड इज द मेन की, कि हम अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से देख रहे हैं तो व्हाट दे कैन डू। हमारे कितने म्यूजिशियंस हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, है ना। अगर हम फिल्म एक्टर्स में देखें तो ऋतिक रोशन भी स्टैमर करते हैं, अभिषेक बच्चन वाज अ डिसलेक्सिक चाइल्ड, आइंस्टाइन वाज अ डिसलेक्सिक चाइल्ड। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी हैं, अगर हम अपना नजरिया थोड़ा सा चेंज कर दें तो वी कैन डू। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट एंड सीबीएसई हैज इम्प्लीमेंटेड इंक्लूसिव एजुकेशन, कि एटलीस्ट उनको असेस करने के लिए आने तो दीजिए स्कूल, उनको सबके साथ बैठने दीजिए, गिव देम एक्सपोजर, जिससे एक्सपोजर अगर मिलेगा तो दे कैन डू मेनी थिंग्स। और ऐसे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, जब हम बच्चों को सक्सेसफुली एडमिट कराते हैं नॉर्मल स्कूल्स में इंक्लूसिव सेटअप में, तो रिजल्ट्स आर कमिंग। Right, बिल्कुल। I remember, I know a child who was dyslexic and पहले बहुत स्ट्रगल करता था, and now he's in, I think he's in high school right now, he's studying well, और अभी अच्छे खासी पढ़ाई चल रही है उसकी।
Yes, So, yes. NIOS is there, and many things are there now. But we have to explore. We have to explore. We have to accept, and we have to be very positive about the capabilities first. हम disabilities देखते हैं, but we are not accepting what they can do. We all are. very true. मैं बहुत अच्छी. I am not a good cook. ये मेरी इनकेपेबिलिटी है ना. लेकिन मैं हमेशा इस बात को लेके नहीं बैठ सकती. We have tremendous opportunities. हम कुछ और भी कर सकते हैं. तो that should be the attitude of the parents and the society. Very true. लेकिन इन 18 साल से आप इन सारी चीजों में काम कर रहे हैं, तो इजी तो नहीं रहा होगा. बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी. प्रॉब्लम्स आई, लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा. कई बार हम लोग पेरेंट्स को ही अवेयर करते थे, बट पेरेंट्स बच्चों को, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो बताना नहीं चाहते कि मेरे घर में एक डिसेबिलिटी वाला बच्चा है ना. उनको वो एक सोसाइटल कह सकते हैं इशू आ जाता है कि नहीं, उनको स्कूल बच्चा भेजने में इनसिक्योरिटी लगती है. कई बार स्कूल्स में एक्सेप्टेंस नहीं होती कि वो हम कैसे केयर करेंगे. आज भी ये प्रॉब्लम है कि हम ऐसे बच्चों को लेने में बहुत इनसिक्योर फील करते हैं कि अगर कुछ हो गया तो दूसरे बच्चे क्या कहेंगे, हमारे यहाँ नॉर्मल बच्चे नहीं रहेंगे. तो इस तरह के इश्यूज वो आज भी फेस कर रहे हैं. मेरे जैसे बहुत सारे डिसेबिलिटी वर्कर्स, ये सारे इश्यूज हैं. एंड अर्लियर तो इट वाज अ बिग हर्डल. अर्लियर तो लोग जानते ही नहीं थे व्हाट थेरेपी इज, व्हाट द डिसेबिलिटी इज. मेनी literate, you can say literate and educated parents, वो भी नहीं जानते थे. But now things are changing. एक्सेप्टेंस अब धीरे धीरे बढ़ भी रहा है वैसे. Yes. अभी धीरे धीरे रेगुलर स्कूल्स में बच्चे नजर आने लगे हैं. Thanks to the changes in the CBSE, especially the education policy. Yeah. They're being sent to the school, and these schools are, but not all schools, I think, are equally, paying attention to that. So there is a need of sensitization. There is a need of awareness in the society. आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रिंसिपल है या एक डॉक्टर है तो वो उसमें एक्सेप्टेंस है, because he or she is not aware. तो अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन इज मैंडेटरी बेसिकली. वो अगर हम कर देते हैं तो वी कैन मेक अ ग्रेट चेंज. सो साथ ही साथ आप प्रेसिडेंट भी हैं यूपी काउंसिल ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबीइंग की. तो क्या ऐसी चीजें हैं जिन पे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड खास तौर से, और यूपी तो एक अलग ही केस स्टडी हो जाता है अक्सर, पूरी दुनिया में सबसे यूनिक जगहों में से एक स्टेट है ये, एक रीजन है ये. तो यहाँ पर क्या इनिशिएटिव्स, किस तरह की चीजें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या देखने को मिला? Nowadays everyone is in need of counseling. मुझे ऐसा लगता है. आप किसी भी एरिया से आते हैं, किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, आप किसी भी सेक्टर से आते हैं, किसी भी क्लास से आते हैं, अलग अलग लेवल पे एवरीवेयर यू नीड काउंसलिंग. क्योंकि आज हमारे पास फ्रेंड्स नहीं हैं, आज हमारे पास सुनने वाले नहीं हैं, है ना. आज हमारे पास सोशल मीडिया पे हमारे पास 10,000 फ्रेंड्स हैं, बट हमारा जो एक्चुअल जिसे कहते हैं ना, वो एक फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेडिशन है. हम लोग अपनों से बहुत दूर है. तो इस कंडीशन में मुझे लगता है कि एवरीवन नीड मेंटल हेल्थ वेलबीइंग, यू कैन से. और हमें अपनी बात कहने के लिए कोई चाहिए तो काउंसलर एक रास्ता है, काउंसलिंग एक रास्ता है. और मुझे लगता है कि जब हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं खासतौर पे विमेन के लिए, तो हर लेवल पे बिना जज किए मुझे लगता है हम सबको बात करनी चाहिए, हम सबको जानना चाहिए कि किसके साथ क्या दिक्कत है, क्या हम सॉल्यूशन उसको दे सकते हैं. तो इट इज नॉट लाइक कि मैं एक ट्रेंड काउंसलर हूँ इसलिए. मेरे साथ जो ग्रुप में है वो अलग अलग फील्ड से लोग हैं, बट दे आर हैविंग सम ह्यूमैनिटी, दे आर हैविंग सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, अगर someone is suffering from something, either stress, depression, frustration, तो we should be responsible for that and we should start talking and communicating. शायद हम किसी की हेल्प कर पाए. तो that is the main issue, you can say the motto of UP Psychological Wellbeing Counseling. It is a totally women group. Okay. But we are not catering only with the women, we are catering with everyone.
या ओके, ग्रेट ग्रेट। सो जैसे, लेकिन अभी आपने कहा कि मेंटल वेलबींग, तो ऑब्वियसली इस वक्त सबको काउंसलिंग की जरूरत है। एक सही बात यह भी है कि अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं, बस आंखों के सामने वो एक स्क्रीन रहता है, एंड उस पर बहुत सारा कंटेंट होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिमाग में अच्छा बुरा कुछ भी हो, लेकिन वो एक कंपैरिजन भी चल रहा होता है। डू यू थिंक इट इज वन ऑफ द बिग रीजंस कि क्यों हमारा मेंटल डिटेरियोरेशन इतना बुरी तरीके से हो रहा है? तो देखिए, जैसे आपने कहा कंपटीशन है बहुत सारा, ठीक है। आपको शेयरिंग के लिए यू डोंट हैव एनीवन, आप कहीं ना कहीं आपको बीइंग जज का खतरा रहता है कि जजमेंटल होके सोचेगा। एवरीवन इज हैविंग सम, यू कैन से ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप अपने तक रखते हैं और सामने वाले के सामने बोलने से थोड़ा सा डरते हैं कि ये कैसे जज करेगा, ये मुझे, इसने मुझे गलत मान लिया तो, ऐसा सोच लिया तो। वो सारी चीजें हमारे पास इकट्ठी होती रहती हैं, तो दैट विल मेक अ प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब आपको स्टेटस भी चाहिए, जब आपको बच्चों को भी अपना अच्छा लाइफस्टाइल देना है, खुद के लिए भी एक सोसाइटल स्टेटस मेंटेन करना है, और आपकी जॉब की भी टेंशन होती है, बिजनेस की भी टेंशन होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो पहले हम लोग, पुरानी फैमिलीज आप देखें, लोग इकट्ठे होते थे, बैठते थे, अपनी चीजें शेयर करते थे, वो कल्चर ही नहीं रहा, है ना। हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड अलग जॉब में है, वाइफ अलग जॉब में है, या अपनी डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स है, तो एवरीवन इज हैविंग प्रॉब्लम्स, बट नोबडी इज रेडी टू लिसन। तो वो थोड़ा सा जो है बहुत एक इशू हो मेजर रोल सकता जी। है, सुनने को लोग तैयार नहीं है और बात भी करना बड़ा मुश्किल हो गया है। एग्जैक्टली, सो टाइम टाइम का बहुत शॉर्टेज है सबके पास। हाँ, लेकिन हमें लगता है कि वो, जैसे मैंने एक दफा, शायद पता नहीं है, इसी शो में बोला था, एक दफा जी हम जा रहे थे तो हमारी गाड़ी के पीछे तीन लड़के, एक मोटरसाइकिल पे तीन लड़के ट्रिपलिंग कर रहे थे। वो हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे थे, ऐसा कि जैसे बहुत जल्दी में है, कहीं उनको कहीं जाना है। खैर वो, हमने गाड़ी मोड़ी, उतने में खैर वो बाइक से थे तो उन्होंने मोड़ ली आगे जाके। फिर हमने देखा कि वो खड़े हुए रोड के किनारे दूसरे लड़कों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन वो बग जब कार के पीछे आ रहे थे तो इतनी जल्दी में थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत मेजर हो गया है। जी तो वो जी वैसे ही नहीं हो गया हमारा भी टाइम, कि हमें लगता है कि हम भागते हैं, हमेशा दौड़ भाग में रहते हैं, एंड देन वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम डूइंग नथिंग एक्चुअली। या तो हम फोन पे एग्जैक्टली। हैं और रात में सोने नहीं आ रहे हैं क्योंकि फोन पे हैं, दिन में टाइम नहीं है बात करने का क्योंकि हम फोन पे हैं या लैपटॉप पे हैं या बेसिकली या किसी स्क्रीन पे हैं। तो यस यस। टाइम तो मेरे ख्याल से फिर भी है, लोग टाइम कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी हाँ, आज हमारे दोस्त बोल रहे थे कि गांव में बहुत ट्रेंड शुरू हो गया है कि वहां पर भी लोग जो है वो फोन लिए बैठे रहते हैं। एग्जैक्टली। So this is something which has become a problem. लाइक Anyway, या कुछ नहीं टेक्नोलॉजी नहीं, की क्या करें। पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं, बट मुझे लगता है कभी अगर आप, एक पुरानी कहावत है ना, ज्यादती हर चीज की बुरी होती है। तो अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं मोबाइल के साथ भी, तो वो हार्मफुल हो जाता है। और अगर आप उसका यूजेस देखें, है ना, तो उसके बहुत अच्छे यूजेस भी हैं, कनेक्टिविटी है, हम लोग कनेक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, चैट्स के थ्रू, तो बहुत सारी चीजें। बट वही है कि हाँ, पॉजिटिव तो है। patience, lack of patience is there now. Lack of patience is there. Time management is not there. तो वो आजकल एक टफ टास्क है, हाउ टू मैनेज योर टाइम। एंड वो हम छोटी छोटी सिंपल चीजों से पहले सीख लेते थे, बट आज वही चीजें मुश्किल हैं। हमारा उठने का टाइम फिक्स नहीं है, हमारा सोने का टाइम फिक्स नहीं है। वही एक मेजर इशू है। अगर हम टाइम मैनेज कर लेते हैं, हम पेशेंस सीख लेते हैं, जो कि विच इज अ टफ जॉब, तो वी कैन मैनेज आवर लाइफ टू सम एक्सटेंट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो आपका करियर बहुत इम्प्रेसिव रहा है। थैंक अब यू, थैंक यू सो किन मच। चीज किन चीजों को लेकर आप सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हैं? किन अकम्पलिशमेंट्स को लेकर आपको लगता है कि आपने आपने शुरुआत करी अपनी माँ के कहने पर, लेकिन आपको लगता था कभी कि आप इतना सक्सीड करेंगी इन सारी चीजों?
हेलो। करने की बात है ये कि ऑब्वियसली आपकी आवाज रुक रही है। जी जी बताइए। ये सही है। सॉरी, एक्चुअली फील सॉरी सॉरी सर, एक तो यही है कि इट्स ओके। अगर आपके पेरेंट्स आपके आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस यस यस, आई कैन लिसन टू। अभी अगर आप अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करते हैं, उनकी कुछ जो भी आपको लेके अ, जो ख्वाहिश रहती है, अगर आप उसे पूरा करते हैं तो वो एक खुशी की बात होती है। लेकिन अगर किसी बच्चे की लाइफ में एक होप आती है, वो स्कूल जाने लगता है, फैमिली खुश हो जाती है, तो उससे भी मुझे एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आता है। और अगर आपके ज़रिए किसी को कोई रोज़गार मिलता है, आपके वजह से अगर किसी की फैमिली चलती है, तो भी आपको एक ये वाली फ़ील आती है। और बाकी तो आपके छोटे-छोटे अचीवमेंट जो होते हैं, वो तो आपके लिए माइलस्टोन्स होते ही हैं। लेकिन उसकी खुशी शायद खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका नया अचीवमेंट तब से स्टार्ट हो जाता है कि आप नया गोल प्लान कर लेते हो। बट हाँ, किसी की फैमिली में, किसी की लाइफ में अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाते हो, तो मुझे लगता है वो एक लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहता है। वो आपकी स्टोरी में भी ऐड होता है। और आपकी मतलब आपको एक मोटिवेशन, डिफरेंट मोटिवेशन मिलता है। तो शायद मुझे लगता है कि अभी तक अपनी लाइफ में मैं कुछ लोगों की लाइफ में चेंज ला पाई हूँ। तो दैट इज़ यू कैन से अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। ग्रेट। अच्छा ये बताइए, अगर जो लोग देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, अगर उनको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए डिसेबिलिटी के बारे में, केयर के बारे में, इंक्लूजन, मेंटल वेलबींग, इन सारी चीजों के ऊपर, तो वो क्या कर सकते हैं? इज देयर कुछ देखिए रिसोर्सेज हैं जिनको आप रिकमेंड कर सकती हैं, जी। कुछ वेबसाइट्स या कुछ भी? जी, जी। आप मेरा ह्यूमन चेन करके एक फ़ेसबुक पर भी आईडी है, आप उससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं। मेरे अलावा मेरे हम्म। सीनियर्स, मेरे टीचर्स भी जुड़े हैं। उसमें कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल भी हैं जिनको देख के बच्चे या पेरेंट्स मोटिवेट हो सकते हैं, जिससे उनसे मिलकर, उनसे बात करके। और हम्म। माय फ़ेसबुक पेज इज़ देयर, if I can share my number is there. So दिशा ऐप इज देयर। दिशा एक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन हेल्प करते हैं, जिससे मैं भी जुड़ी हूँ, और बहुत से मेंटल हेल्थ एंड डिसेबिलिटी वर्कर्स और एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ऐसे ही यूपी में एक गवर्नमेंट टीचर्स के लिए जो चलता है, वन टीचर वन कॉल, आप उससे जुड़ सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बट एक आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जहां तक मैं पर्सनल लेवल पे कह सकती हूँ, आप मेरी पर्सनल आईडी से और ह्यूमन चेन से कनेक्ट हो सकते हैं, एंड यू विल गेट ऑल द आपकी इन्फॉर्मेशन। आपकी पर्सनल आईडी क्या है? उज़मा कमर के नाम से फेसबुक पर है। आप उसमें ओके। रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और मैं उसके थ्रू आपको, ह्यूमन चेन की भी एक आईडी है, ह्यूमन चेन से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्योंकि आप कैफे में बैठी हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अभी सवाल मेरे पास एक दो कुछ और है, लेकिन ठीक जाते जाते एक आपसे पूछना चाहूंगा कि जो भी लोग इस वक्त देख रहे हैं या देखेंगे, उनको कुछ बोलना चाहेंगे, समथिंग दैट यू वांट टू टेल देम, समथिंग दैट यू वांट टू रिक्वेस्ट देम और एनीथिंग? है। मैं सिंपल एक बात बोलना चाहूंगी कि बात करते रहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड रहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को मॉनेटरी हेल्प करें, किसी को कोई चीज़ देके हेल्प करें। आप किसी से बात करके भी किसी की बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। और बहुत सिंपल, जो हर मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है, हर कोई बोलता है, पॉजिटिव एटीट्यूड सच में मैटर करता है। एंड सिर्फ एटीट्यूड ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं भी उतना ही जानती हूँ जितना और लोग जानते हैं। लेकिन छोटे-छोटे चेंज करके आप शायद अपनी और दूसरों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं।
to be positive and be connected. Thank you so much, Dr. Uzma. That was really nice of you, and thank you so much for taking out time अपने travel के बीच में से, and I know you, and कैफे में जाकर जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करके कि इंटरव्यू करना है हमें. चलिए बहुत बहुत Yeah, शुक्रिया, and I hope that we'll connect again. And ह्यूमन चेन definitely. करके आपका फेसबुक पर है, उससे आप जुड़ सकते हैं जो कोई भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं. और उज़मा से आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर. अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उज़मा कमर करके आप सर्च कर लीजिए, and you'll find her and you can connect with her. So please do that, and please, if you are a teacher or if you're a parent or anybody, आपको information चाहिए, so please connect with her, because I think she will be able to help you a lot, especially if your child has special needs. Thank you so much, Dr. Uzma. Thanks a lot for taking out time for us. So much. Thank you so Thank you. much. Thank Okay. you. Nice. Thank you. And as for the rest of you, Nurture Life Talks में हम अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले संडे को एक नए मेहमान के साथ. Thank you so much for being here. Have a lovely week ahead. Bye-bye and good night.